Hello everyone. Today we are going to see one more important topic from surveying, and unit number 2 is chain and cross staff survey. In that we will be seeing part number 2. So the being a lecture number 3, we will be dealing about the topics given are content are ranging. In ranging we will be seeing direct and indirect ranging, chaining, plane and sloping ground, chain triangulation. In that we will be doing survey station and their selection, survey lines, check lines, tie lines, baseline, taking offset, long and short offset, degree of offset, and obstacle in chaining. So these are the topics we are going to see one by one in this video lecture. So first of all is detailed content of chain survey. So what is detailed content of chain survey? As you can see in this diagram is given one open ground is there, and through this is taken. This is a 3D view. In that, trees are planted. B1, B2, B3 are building 1, building 2, and building 3, and the trees are planted. So in the chain survey, what you need to do is, like we all know that in chain survey is done for short areas, small areas. Okay, as you can see in the point, the area shall be fairly small. The ground is moderately labeled. Labeled means the ground should be, like for example, the ground should be plain. There should not be uneven like this. Okay, so labeled means plain. Okay, and the area need to be open means it should be open to sky. How you can see this picture, so you will understand the area need to be open. The ground has a few and simple details. As you can see, ये ground है तो इसमें सारा डिटेल दिया है कि कहाँ घर है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे पानी टंकी है, तो ये सब सारा चीज़ दिया है. तो चेन सर्वे में आप आसानी से पॉइंट ए या पॉइंट बी के बीच में आप उसका एरिया को माप सकते हो. तो दैट इज डिटेल कंटेंट ऑफ चेन सर्वे. Next is ranging. So ranging, what is ranging and why we do ranging? There are two types of ranging, that is direct and indirect ranging. We will be seeing in this ranging that in direct method there are two types, ranging by an eye and ranging by an line ranger, and there is indirect method. So we will be seeing first what is ranging. So ranging. So ranging, what is ranging? Ranging means simply visualizing the point A and B, or simple, either by direct method or indirect method. So in direct method, its example is like if a point A is given and point B is given, and both points are visible from one end to another end. If you see from here also it is visible, if you see from here it is also visible, then that process is known as ranging by direct method. We all know that we have seen that if the line is short, it is easy to put the chain in a true alignment. So easily you can put the chain in a true alignment without any error. You can measure both the points given to you. It is necessary to place the intermediate ranging rod to maintain the direction. So if अगर हम लोग बीच में एक रेंजिंग रॉड डाल देते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सा दिशा में होके जा रहा है. नेक्स्ट, फिक्सिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू फिक्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट. लाइक अगर हमको आगे काम करना है तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट से हम लोग काम को फर्दर प्रोसेस में लेके जा सकते हैं. तो दैट इज रेंजिंग. सो वी विल बी सीइंग now what is direct ranging and indirect ranging. So direct ranging. So direct ranging is the ranging conducted when the intermediate points are intervisible. For example, when we will see, तो आपको समझ में आ जाएगा, इस डायग्राम से देखिएगा. Like see, A point A and point B, so it is visible, and P is the person where one ranging rod is kept for intermediate visual. So easily we can when you can see from this side also it is visible, from this side also it is visible. So it's ranging is done by an eye. So first we will see direct ranging means direct ranging can be performed by eye or with the help of eye instrument. वो हम आँख के द्वारा भी कर सकते हैं और बाय लाइन रेंजर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. वेयर बोथ एंड्स आर म्यूचुअली विजिबल फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड अनदर इज रेंजिंग बाय आई line ranger. So that is known as direct ranging. So we have already seen in this ranging. So we will be seeing like fixing rod at each end, like a point A and point B where rods are fixed
okay, and stand about 1.5 beyond the first ranging rod. You can say the surveyor being standing 1.5 meter beyond the first ranging rod. You can see here the direct the assignment to hold the ranging rod vertically when the intermediate points to be fixed. When we need to fix and when we need to move front, तो हमें क्या होना पड़ेगा, वो इंटरमीडिएट पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा. सो दैट इज रेंजिंग बाय एन आई. इसको हिंदी में बोले तो सिंपल है कि आप आसानी से दोनों पॉइंट को विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो. और देयर इज एक और पर्सन होते हैं सर्वेयर जो उसको वहाँ पे हम लोग रेंजिंग रॉड डाल देते हैं. वहाँ से हम लोग जैसे कि एग्जांपल में इसको डाल दिए हैं, वहाँ से हम लोग आसानी तरीक़ा से देख सकते हैं. दैट इज़ नोन एज रेंजिंग बाय एन आई. Next is ranging by line ranger. So before going to this topic, I need to explain the diagram first. It is a line ranger is a device where what is there? Two holes are there, point A and point B. As you can see here in this diagram, you can see from here observer. Okay, you can see here observer. Okay, so two mirrors are placed, so that through mirror if you see there are pole A and pole B, and there are two prisms. In that prism you can see this diagram, the that ranging rod has been, both are split in shape, but when you adjust the screw it comes to point that is known as ranging by line ranger. As you can see in this picture also, down picture also, कि हमारा point P is given here. So P say you are observing through your eye and you are adjusting the screw A and screw B. So before adjusting it will be visible like this, but when you adjust it, it both will come in a same line, that is A and B. So that is done with the help of line ranger. So line ranger is simple. It consist of triangular prism, okay, for fixing an intermediate station P. So अगर हमको कोई स्टेशन पॉइंट P पुट करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा. एक क्या होता है कि एक लाइन रेंजर होता है. लाइन रेंजर में दो प्रिज्म, ट्रायंगल प्रिज्म दिया रहता है, ठीक है, और उसमें हम एक जहाँ से देखेंगे तो हमारा दोनों पॉइंट विजिबल होगा. पॉइंट A भी विजिबल होगा, पॉइंट B भी विजिबल होगा. क्यों विजिबल होगा? बिकॉज देयर इज ए मिरर इन दैट, द प्रिज्म इन दैट, वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो उससे क्या होगा, व्हेन यू कैन सी जब रिफ्लेक्ट करेगा तो आपस में वो मिला नहीं रहेगा. व्हेन यू विल एडजस्ट द स्क्रू तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा. तो आसानी से यू कैन प्लॉट द रेंजिंग रॉड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. दैट इज नोन एज ए रेंजिंग बाय लाइन रेंजर. Next is indirect ranging. So as you most of the grounds are not in level in shape. So आप यहाँ देख सकते हो कि अप्स एंड डाउन्स है. तो हमें इस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मोस्टली नॉट विजिबल. तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेके चलते हैं, एम एंड एन लेके चलते हैं. फिर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट करेंगे. सो इट इज़ ईजिली विजुअल एंड इट इज़ सिंपल टू टेक द रीडिंग. सो एज यू कैन सी, इसी को हम लोग नीचे में हम लोग कैसे मार्किंग किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो वी हैव मार्क्ड एम एंड एन पॉइंट. सो फ्रॉम बोथ द एंड्स हम लोग एम एंड एन पॉइंट को मार्क कर लिए. then similarly M3, N3, then M2 and so similarly it is easy to mark. जब हम ऊपर देखेंगे तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमको पता लग जाएगा कि हम लोग कैसे पहाड़ी इलाका में हम लोग डिस्टेंस मेजर कैसे कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट रेंजिंग वी कैन ईजिली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन एरिया. Indirect ranging में first of all what we know to say that is it is also called reciprocal ranging. ठीक है, इसमें हमने फिगर में देखा कि हमारा दो पॉइंट था, एम एंड एन था, ठीक है, और हम जब जजमेंट करते हैं तो उसको हमें एम एंड एन बोथ आर विजिबल रहता है. मीन्स जैसे हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा पॉइंट ए से एम विजिबल रहता है, पॉइंट बी से एन विजिबल रहता है. सिमिलरली ये दोनों रीडिंग ले लेंगे हम लोग. सिमिलरली फिर जब एम से हमारा होता है M2 एंड N2. सिमिलरली इट गोस ऑन और आसानी से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो. तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम लोग ये सीखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज चेनिंग. तो चेनिंग ऑन अ प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड. वी ऑल नो हाउ विल वी चेन. ठीक है, कैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम मापेंगे. तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इफ ए स्टेप मेथड, इस डायग्राम में देखेंगे स्टेप है P1, P2, P3, P4, P and Q1, Q. तो इसमें क्या हो गया कि द टोटल हॉरिजॉन्टल बिटवीन P एंड Q इज P प्लस P इंटू P1 प्लस P2 इंटू P3 प्लस P4 इंटू Q1. तो आसानी से आप स्टेपिंग मेथड में आसानी से इस फार्मूला को इस्तेमाल करके उसका एडिशन करोगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, द वैल्यू विल कम डाउन. सो चेनिंग इज डन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड एंड स्लोपिंग ग्राउंड. तो व्हाट इज फ्लैट ग्राउंड?
ठीक है, when both ends are visible, when you place a ranging rod from point A and point B, both are a sloping ground. As your example, the hilly areas are in sloping ground, okay, inclined in position. So it is also done by two methods. Direct method, तो direct method में हम लोग stepping method से करेंगे, and in direct method में we will take out angle measurement, application of hypotenuse allowance, measuring different elevations. So by this all process we will be finding the sloping ground. तो angle measurement में क्या होगा, for example A, B and C points are given, so आसानी से हम लोग angle हम लोग find out कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज मीन्स आसानी से हम लोग विद द हेल्प ऑफ, अगर किसी एरिया का हमको लेआउट निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 मेथड से हम लोग आसानी से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम लोग उसका आंसर को लेके आ सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज चेनिंग इन प्लेन एंड स्लोपिंग ग्राउंड. नेक्स्ट वन इज विल सी चेन ट्रायंगुलेशन, सर्वे स्टेशन एंड देयर सिलेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है. सो व्हाट इज़ चेक लाइन, व्हाट इज़ बेस लाइन, व्हाट इज़ टाई लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट, तब हमें समझ में आ जाएगा कि चेन ट्रायंगुलेशन होता क्या है. तो बेस लाइन क्या है, ए लाइन विच इज़ जनरली लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सर्वे लाइन्स. बेस लाइन क्या है, ए लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सर्वे लाइन. एज यू कैन सी पॉइंट सी टू पॉइंट ए, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सर्वे लाइन मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अटैच करता है विथ एंटायर फ्रेमवर्क, दैट इज नोन एज ए बेस लाइन. इट जनरली रन्स इन द सेंटर ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड एंड शुड बी लेड ऑफ ऑन द लेवल ग्राउंड. मीन्स की सेंटर ऑफ द मीन्स इट कट्स डायगनली. अब हम यहाँ देखेंगे पॉइंट हमारा सी से ए है, तो हमारा क्या है, ए हमारा बेस लाइन है. तो नेक्स्ट है हमारा टाई लाइन. तो टाई लाइन क्या होता है, ए लाइन जॉइनिंग टू टाई स्टेशन इज नोन एज ए टाई लाइन. एज एग्जाम्पल ये भी एक स्टेशन है, एक ए भी स्टेशन है, और दोनों को ज्वाइन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइन बनते हैं. और ये सब क्या है, टाई स्टेशंस है. तो दैट इज नोन एज ए टाई लाइन. इट रन्स टू टेक द इंटीरियर डिटेल विच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन लाइन्स एंड ऑल्सो अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट्स. सो इट इज़ ईजी कि अगर छोटा छोटा डिस्टेंस पे रहेगा तो आसानी से आप उसकी रीडिंग को निकाल सकते हो. तो हमारा उससे हमारा टाई लाइन उसको कहते हैं. नेक्स्ट इज चेक लाइन. सो व्हाट इज चेक लाइन, चेक लाइन इज ए लाइन विच इज यूज टू चेक एंड टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क. As well, the plotting work is known as a check line. So what is check line, it checks whether you the frame is in right position or not. That is known as a check line, which is also a dotted line, okay. It is a line which runs from the apex of a triangle to any other fixing point or any other two sides of triangle, okay. So these are the basic of baseline, tie line and check line. So check line, as you can see in the diagram, I will help you with the check line, ठीक है. चेक लाइन किसको बोलते हैं, डॉटर लाइन. एज यू नो दिस इज अ ट्राइंगल वेयर उसमें हमारा ये हमारा जो लाइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक लाइन. तो चेक लाइन है वो व्हाट इट प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क विच इज़ यूज फॉर प्लॉटिंग. सो दैट इज चेक लाइन. तो बेसिकली वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक व्हाट इज बेस लाइन. Baseline is a longest survey line which runs across the center, and the tie line where two tie stations are there which joins two tie station, that is known as a tie line, and the check line where the triangle accuracy work is checked. What then next is main survey station. What is main survey station? The main survey station are the important points at the beginning and the end of the chain line. Like for example, here all the points are given A, B, C, D, E. This is the beginning and E is the ending position. So main all these all are the main survey station. Then tie station. Then what is tie station? These are the points selected on the main survey line फॉर लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स. फॉर अगर हमको कोई भी इंटीरियर डिटेल के बारे में दर्शाना है कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे घर है, तो आसानी से हम टाई स्टेशन से उसको हम लोग एक एरिया में दर्शा सकते हैं. तो हमको उसको क्या कहते हैं, चेन ट्रायंगुलेशन. तो इस वेरी बेसिक कि ट्रायंगुलेशन में किसी चीज़ को अगर मापना हो, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल, तो हमारा क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा होता है रेफरेंस ऑफ 2 पॉइंट, और आसानी से 3rd पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो. तो हम लोग ट्रायंगुलेशन क्या करेंगे, उसको हम ट्रायंगल फॉर्म में काट देंगे, तो आसानी से हम उसका आंसर को लेके आ सकते हैं, एंड दैट टू विथ एरर फ्री. तो दैट इज चेन ट्रायंगुलेशन. नेक्स्ट इज ऑफसेट. So what is offset? Offset is a lateral measurement. What is lateral measurement? Lateral measurement में either you can visualize directly
or either by with the help of angles. So lateral measurement taken to the left or right of the survey line, like as you have seen the survey line. What is survey line? Survey lines runs through the center. Okay, so to locate the details such as a building, boundaries, fence and road. तो आसानी से ऑफसेट को इस्तेमाल करके आप प्लॉट कर सकते हो कि कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे बाउंड्री है, कहाँ पे फेंस है, कहाँ पे रोड है. तो व्हाट इज़ फेंस? फेंस को हिंदी में आरी के रूप में बोला जाता है या बाउंड्री के रूप में भी बोला जाता है. तो हम लोग कितने प्रकार का होता है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट. तो परपेंडिकुलर ऑफसेट को हम लोग कैसे देख सकते हैं? Either you can do by eye, by swinging tape and by instrument. As you can see here, हमने एक बिल्डिंग को कैसे प्लॉट किया है 90 डिग्री में. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, तो आसानी से हम लोग उसको प्लॉट करा है. ठीक है. और इसमें होता है ऑब्लिक ऑफसेट में, ऑफसेट टेक एट ए राइट एंगल टू ईच अदर देन 90 टू द सर्वे लाइन. तो ये हमारा ऑब्लिक ऑफसेट में आता है. ठीक है. एंड दिस कम्स एज यू सी कि हम लोग बिल्डिंग को एंगल अदर देन 90 डिग्री हम लोग चेक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलते हैं. हम इसमें दो टाइप का ऑफसेट होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफसेट. तो लॉन्ग ऑफसेट क्या रहता है? ऑफसेट आर कॉल्ड शॉर्ट व्हेन दे आर लेस देन 15 मीटर इन लेंथ एंड ऑफसेट आर कॉल्ड लॉन्ग व्हेन दे आर एक्सीड 15 मीटर लेंथ. अगर हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं तो अगर 15 मीटर से ज़्यादा हो जाता है उसको लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं, और 15 मीटर से नीचे हो जाता है उसको शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं. तो दैट इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफसेट. तो ऑफसेट इज basically used for measurement of lateral measurement taken to the left or right of the survey line. As we have seen in the picture, what is survey line? Survey line is the longest running line between all the points, that is known as a survey line. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टैकल इन चेनिंग. कितने प्रकार का ऑब्स्टैकल आते हैं उसको हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द ऑब्स्टैकल. ऑब्स्टैकल का हिंदी क्या होता है? ऑब्स्टैकल मीन्स कोई रुकावट. चेनिंग जब आप करते हो तो कोई रुकावट आता है कि नहीं आता है. वी विल बी सीइंग वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज ऑब्स्टैकल टू विजन और रेंजिंग. लाइक आपको पहला क्या है? ऑब्स्टैकल टू विजन और ए रेंजिंग. दूसरा है आपका ऑब्स्टैकल टू चेनिंग. मीन्स व्हेन यू डू चेनिंग इज देयर एनी रुकावट इन दैट और नॉट, मीन्स ऑब्स्टैकल आ रहा है कि नहीं. एंड थर्ड वन इज ऑब्स्टैकल टू बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग. सो वी विल बी सीइंग ऑल दिस ऑब्स्टैकल इन चेनिंग वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज obstacle to vision or ranging. So what is obstacle to vision or ranging? That is known as the obstacle obstructed ranging but can be changed in the line, raising ground, intervening hill, wooden forest. Like for example when you do chaining there is a obstruction to vision. आप उस पॉइंट ए से पॉइंट बी को नहीं देख सकते हो. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्टैकल टू विजन और रेंजिंग. फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट से आप कर रहे हो तो बीच में जंगल आ सकता है, बीच में पहाड़ आ सकता है, बीच में वुडन फॉरेस्ट आ सकता है. तो एक पॉइंट से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, ए ठीक है, और पॉइंट बी है, ठीक है, अब बीच में पहाड़ है. ठीक है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आप ये पॉइंट से ये पॉइंट नहीं देख सकते हो. तो व्हाट इज़ दैट? ऑब्स्टैकल टू विजन और रेंजिंग. तो क्या होता है? ऑब्स्टैकल ऑब्स्ट्रक्ट रेंजिंग मीन्स आप आसानी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विजुअलाइज नहीं कर सकते हो. किस वजह से? क्योंकि बीच में पहाड़ आ जा रहा है, बीच में रेसिंग ग्राउंड आ जा रहा है, बीच में वुडन फॉरेस्ट आ रहा है, एनीथिंग. ठीक है. तो दैट इज ऑब्स्टैकल टू विजन और रेंजिंग. नेक्स्ट इज obstacle to chaining. Like both points are visible. When you see point A and point B are visible, आप आसानी से देख सकते हो. What there is a obstacle that in between there is a river, there is a pond, there is a lake और सहज. तो आप आसानी से पॉइंट ए या पॉइंट बी को देख सकते हो लेकिन माप नहीं सकते हो क्योंकि बीच में आपका क्या आ जा रहा है? आपका नदी आ रहा है या नाला आ जा रहा है. तो दैट इज ऑब्स्टैकल इन चेनिंग. ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑब्स्टैकल टू विजन मीन्स आप दोनों पॉइंट को नहीं देख सकते हो. मीन ऑब्स्टैकल टू चेनिंग मीन्स बोथ पॉइंट्स आर विजिबल बट ड्यू टू सेंटर में क्या आ जा रहा है? हमारा नदी आ जा रहा है, नाला आ जा रहा है. द लास्ट वन इज ऑब्स्टैकल टू चेनिंग में ऑब्स्टैकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग दोनों पॉसिबल नहीं है. ना आप दोनों पॉइंट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हो, ना चेनिंग भी कर सकते हो. क्यों? आप शहरी इलाका को देख लो, देयर इज अ टॉल बिल्डिंग्स. ओके. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू चेनिंग. सो वी हैव स्टडीड इन ऑब्स्टैकल टू चेनिंग देयर आर थ्री टाइप्स: ऑब्स्ट्रक्शन टू विजन और रेंजिंग, ऑब्स्ट्रक्शन टू चेनिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू बोथ. तो हमने एक बेसिक एग्जाम्पल से देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग और चेनिंग में क्या होता है, विजन क्या होता है. विजन में कि आप दोनों पॉइंट्स को नहीं देख सकते हो.
बिकॉज बीच में देयर इज ए जंगल इन दैट और एन रिवर इन सेंटर, तो वो आपने देख सकते हो। अब नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, बोथ पॉइंट्स आर विजिबल, आप दोनों आंखों से देख सकते हो, लेकिन बीच में नदी नाला के आने की वजह से आप चेनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एज यू ऑल नो चेन नीड्स ए प्लेन ग्राउंड, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। तो दिस वेर द ऑब्स्टेकल ऑफ बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। सो वी विल बी सीइंग summary. So what we have studied in this topic, we have studied about what is ranging, we have studied about direct ranging and indirect ranging, we have studied about offset. In offset what we have taken different types of long offset and short offset. We have studied about the basic survey lines, what is survey line, baseline, tie lines, and then we have studied about chaining free but vision obstructor like obstacle कि रुकावटें क्या क्या चीज़ आ रही है चेनिंग करने में। तो फर्स्ट वन वाज चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टर, नेक्स्ट इज चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टर बट विजन फ्री, लाइक आप चेनिंग को आप नहीं कर सकते हो लेकिन आप देख सकते हो, एंड द लास्ट वन इज बोथ चेनिंग एंड विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टर। तो आसानी से आप दोनों पॉइंट को आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की तरफ से बिल्डिंग फ्लो आ जाए तो आप आसानी से ना चेनिंग कर पाओगे ना देख पाओगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो ये बेसिक चीज़ है जो गिवन है हमारा प्लेन एंड चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे में। तो दैट वॉज द समरी विच वी हैव सीन इन दिस टॉपिक। Next is reference. So from where I have taken this content, I have taken from N.N. Basak book, then I have taken for Dr. B.C. Punamia book, I have referred S.K. Hussain and M.S. Nagraj book, and then I have seen the google.com also. So अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे में, वी विल बी डीलिंग दिस इन ऑनलाइन डाउट क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू।